animals which are confined to zoo cage system. These animals can be transported for MRI, and their problems which may exist, treatable problems, we'll be able to treat that. And then since India is a country where economy depends on farm animals, we have the dairy, then we have the in the higher up Himalayan ranges, we have the behavior buffalo and yaks. These animals, if the facility can get open to some other area in India, then probably trained veterinarians, they can get they can train government hospital veterinarians to carry on MRI procedures, and if the animal needs treatment, very specialized treatment, it can be brought to Delhi at our center for surgical intervention. So what I mean, we are not only thinking of people who can afford costly animals, we also want to share and take this facility to state animal husbandry departments if they associate and they make up a all India scheme for high-tech procedures which can be diagnosed to MRI only. So quality pet healthcare. Given that focus, we have been over the last several decades, which you've heard before, the vanguards when it comes to new surgical procedures, new new diagnostic procedures, as well as new treatment options. What this MRI will envision, or what we envision this MRI will do, and here I speak more as a pet parent, I'm not aware, as a pet parent, is take the level of diagnostic to a whole different level. The other change which has happened in this country as well as across the world is the change in paradigm from a pet owner to a pet parent to a parent. So we actually look at this more as a pediatric care rather than veterinary care, and that's how the market is evolving. To your question, in terms of our expansion plan, I think we are very clear, we have a very ambitious expansion plan, but having said that, we are crystal clear also that we will be prudent in how we expand, because the cornerstone of our success is that ability of providing consistent quality pet healthcare. That necessitates the type of vets we have, the expertise we have, the training, the paravets, and the infrastructure. So yes, we will expand, we'll double down where we are present, we'll look at newer markets, but we will be prudent in our expansion. The other thing is we are very keen on sustainability in terms of how we sustainably expand in terms of unit economics. So this will drive us, or that will be our North Star guiding us forward. रही है, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं. सो ये दो तरीके की का क्वेश्चन था आपका. आई होप ये आंसर डॉग कैट से ये खाली it's not just restricted to dogs and cats. You can use it for any animal, starting from a small little bird to a mouse to guinea pigs, hamsters, rabbits, cats, dogs, even tigers and lions. और उनके बीच में जितने साइज के जानवर आते हैं उन सबको आ सकता है. बेस्ट वार्ता इसलिए है बिकॉज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, डॉक्टर्स की एजुकेशन अपग्रेड हो रही है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर आएगा, वेलनेस ऑफ द एनिमल्स के ऊपर आएगा. फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस के लिए, चाहे ब्लड सैंपल्स टेस्ट हो रहे हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की टेस्टिंग हो रही है, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो या CT scan हो. The anatomy which different species have different anatomies. आज जो इमेज हम लेते हैं उस इमेज को कंपेयर करेंगे, फिर पता लगेगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है. वो डिफरेंस इंडिकेट करेगी किसी तरह किसी बीमारी की तरफ, किसी तरह किसी एब्नॉर्मलिटी की तरफ, और उसको ट्रीट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो मेडिसिन से ठीक होगा या फिर वो सर्जरी के थ्रू ठीक होगा. अब फॉलो अप प्रोसीजर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर है या प्रोग्नोसिस अच्छा है. इसमें डिपेंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा करती है कि एनिमल का पोस्ट सर्जरी या ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल बना है वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है.
बट एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी होने की उम्मीद तो हमेशा होनी भी चाहिए और रहती भी है। सबसे बड़ा में मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? यू नो द स्मॉलर द पेट ब्रीड लॉन्गर इज योर लाइफ स्पैन, और जितना बड़ा या ओबीस डॉग होगा उसका लाइफ अपने आप कम हो जाता है। बट ये देखा गया छोटी वाली जो नस्लें हैं लाइक चिवावा, अंडर 10 kg बॉडी वेट वाली जो हैं, पिकनीज है, ये सारी छोटी वाली ब्रीड जो हैं 14 साल के आसपास जी जाती हैं। हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडीज जिनको कहते हैं, दे आर नॉट स्ट्रे डॉग्स, दे आर ऑल इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। इनकी लाइफ जो है वो 16 साल के आसपास तो है ही। पर जो बहुत वेल लुक्ड आफ्टर डॉग्स हैं, जहाँ उन नस्ल्स के अंदर, उन ब्रीड्स के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लाइफ 18-20 साल भी देखी गई है, मैक्सिमम 22-23 साल रही है रेयर केसेस में। की लाइफ जो है तकरीबन 350 साल है। सो एनी टर्टल ओनर हैज़ टू मेक ए विल एंड सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस कि उसके मरने के बाद उस टर्टल की देखरेख कौन करेगा और फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे 350 साल। ऐसे मतलब एक और जनरेशन चेंज हो जाएगी। सो आई मीन एनिमल्स दे हैव दो, उनकी किस्मत अपनी है, और अच्छी किस्मत साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एक डिजीजेस की एलिमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे कैंसर है, या एक्सीडेंट्स हैं एनिमल्स के। वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है उस हिसाब से देखते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मिट्रियल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब मिट्रियल वाल्व क्या है, वो एक ब्लड फ्लो को सिटी को एशिया की पहली एमआरआई मैग्निफिको वेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। और इस एमआरआई से नॉट ओनली द स्पाइनल सर्जरीज विल बी बेनिफिटेड, ब्रेन सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज, ये सब सर्जरीज इस एमआरआई की मदद से राइट डायग्नोसिस से प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पेशेंट के अंदर देख पाएंगे कि सर्जरी कैसी हुई है, सर्जरी कैसे करनी है और सर्जरी कैसे हुई है। एंड इसके इस पे ज़्यादा डॉक्टर कुणाल भी बताएंगे। देखिए, हमारी जो कंपनी है मैक्स पेट्स, इसका एम है क्वालिटी हेल्थ केयर हम एक्सेस बढ़ाएं, इस देश में क्वालिटी वेटनरी हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाएं। वो बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, और पूरे वेटनरी फ्रैटर्निटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि एमआरआई वेटनरी स्पेसिफिक एक लॉन्च हो रही है। और इंडिया के अंदर सबसे पहली बार, इनफैक्ट एशिया की फर्स्ट इंस्टॉलेशन है इसॉटे की इस पर्टिकुलर मॉडल को लेके, जो कि सबसे एडवांस्ड मशीन है। सो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, मैक्स पेट्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, हर वेटनेरियन के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, और जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये हैप्पी मोमेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको गॉड फोरबिड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डायग्नोस्टिक्स की जिसके अंदर एमआरआई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अब अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं होता था। एक बहुत बड़ा बून इसके लॉन्च से ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमारी मैक्स पेट्स की टीम अलॉन्ग विद टीम ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हम सब मिल के काम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पेशेंट्स। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एमआरआई के लॉन्च से इसके साथ में हमारी जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास डिजिटल एक्सरे जो है वो बहुत पहले से हमारे पास था और हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो है बड़ी हाई एंड मशीन्स हैं जिसमें हम इकोकार्डियोग्राफी 2D Of course, MRI is a very important and powerful technology because provide us a lot of insight of human body and veterinary also body and tissue as well. And the Magnifico Vet is a very powerful technology because thanks to Magnifico Vet we can image the lumbar spine of the animal, the neurocranium, and also the joints. And these are very fundamental in the clinical practice of veterinary doctor because they can help them to assess the best diagnosis and provide to the animal the best treatment as well.